Everyone, welcome back to my channel. Today we are going to read the poem Do Something Brother, which was written by M. Gopal Krishna Adhika. Or if we start with the poet, Gopal Krishna Adhika was an eminent Kannada poet, scholar, novelist, essayist, and modernist, and he has edited the Sakshi magazine. Samagra Kavya Sangrah was published by him, in which various poems of his is collected, which was published in 1976. He has written many critical essays, many novels. He has started the Navya movement, in which the poet writes about the disillusionment and the end of the time. And this was started in Kannada poetry, and this was inspired by European literary tradition. Sophistication in use of language and importance of technique is introduced by Gopal Krishna Digga, and he has won the honor of Sahitya Academy and Pampa Prasasti in 1993. So in this poem, if we come to the poem, so poem is the original written in Kannada language, and it was translated in English by A.K. Ramanujan. And in this poem, the poet mocks the modern man's tendency to be up and doing without any concern of consequences. Poet has taken a clinical look and a satire on it. So in this poem, Adiga has pointed out the opposition between thought and action. The speaker urges on incentives man to some violent action, to crush, to nip, to pull down, to break down and burn whatever comes handy. He says man must not be idle. So let's start the poem. So poem, do something, brother, keep doing something, anything, you must not be idle. Pull out this plant, nip this little leaf, crush that flower, their grass, run your bread through it, burn it like Lanka. Tiny butterflies, parrots, sparrows, chase them, catch them, pluck their wings, pull out their fur and feather. There's in the garden jasmine and banana gold grow for the wild animal feeds. So जैसे कि हमने देखा था कि पोएट जो है उस चीज़ की बात करें कि मैन जो अपने जो काम करता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वो नहीं सोचता है। तो इसके अंदर अपोजिशन है थॉट और एक्शन का। एक्शन वो कुछ करता है, उसका थॉट मतलब कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कुछ नहीं सोचता। जैसे फर्स्ट स्टैंजा में बोल रहे हैं कि तुम कुछ ना कुछ करते रहो, एक सेकंड के लिए भी तुम बैठो मत, क्योंकि तुम्हें जो है आइडल मतलब फ्री नहीं बैठना है। तुम कुछ ना कुछ करते रहो, जाओ इस जो फ्लावर्स है इनको तोड़ो, इन प्लांट्स को निकालो, इन लीव्स को निकाल लो, इनको फ्लावर्स को क्रश कर दो, इस ग्रास को लंका की तरह जला दो, इन बटरफ्लाइज, इन पैरट स्पैरोज़ के जो फर और फैदर है वो निकाल लो, ये जो जैस्मीन फ्लावर्स हैं, बनाना गोल्ड है, इनको जो है अपने जो है पैरों के नीचे क्रश करो, क्योंकि ये तो होते ही इसलिए हैं कि एलिफेंट की फीट के नीचे जो है क्रश हो पाएँ। तो इसके अंदर पोइट जो है सटायराइज़ कर रहे हैं कि मैन जो है अपने जो भी काम करता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वो नहीं सोचता है। तो उसके अंदर होता है कि नहीं नहीं तुम तो करो, बैठे क्यों हो, जाओ इनको ग्रास को जलाओ, बटरफ्लाइज के फैदर ले, फ्लावर्स को क्रश करो, तो तुम बैठे क्यों, सटायर कर रहे हैं एक। All over the walls were lit master switches. Each for your fingers, close your eyes and pull down 20 of them, earth, water, and skies. There are all your key with golden eggs. Gouge them out, slash them, do or die. They say disasters are the test for your genius. Galloping dance, something must crush every minute. Brother, act once, at once, do something. Thought, weight, and measures are all for the past, for the underdying ghostly treasures of the dead. So, in the second stanza, poet is saying that man is violent and life threatening by nature. Man has restless desire to pull down the master switches with his master line fingers. He is asked to exploit the world, water, sky, all at once, just as a golden egg laying goose was killed to get all the eggs
at once rather than waiting. सो पोइट यहाँ बता रहे हैं कि मैन का जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग वॉयलेंट जो है एक उसका नेचर है, वो रेस्टलेस है अपने डिज़ायर पे कि उसको जो है पुल डाउन करने अपने सारे मस्त स्विचेस को अपने फिंगर से, क्योंकि वो जो है हर जगह अपना डोमिनेट करना चाहता है। वो पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लॉइट करना चाहता है, चाहे वो स्काई हो, चाहे वाटर हो, चाहे कुछ हो। जैसे कि गोल्डन एग, एक जो हमने कहानी सुनी थी कि एक मुर्गी जो है सोने का अंडा एक देती थी रोज़, तो उसके मालिक ने एक दिन सोचा कि सारे एक साथ ही निकाल लेता हूँ, तो वो जैसे उसको मार देता है वैसे ही जो है, ऐसा ही जो है मैन जो है चाहता है। Man has bring about complete disaster at fast speed. He has to do and die since there is no third option. तो man has only two option that other than do or die. करो या फिर आप मरो, करो नहीं करोगे तो आप मरो, करो तो कर रहे हो। और वो जो है पोइट यहाँ बताते हैं कि ये वेट और मीज़र जो ये जो चीज़ें हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि ऐसा क्या है, ये सब चीज़ें पास्ट की हैं और हमें जो है इसमें नहीं, हमें हर समय कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। पोइट एक सटायर कर रहे हैं कि मैन जो है कैसा है अपने नेचर में, और कैसा वो जो है हर जगह डिज़ास्टर लेके आ रहा है बहुत ही जल्दी से। There's the forest, cut it clean to the stump, slit it for your butting. You have the axe and the sickle, the saw and the knife. Go harvest all the world with the flourish of your hands, but you mate. But you meet winter mist, wall of fog, wall that line the space between face, and the road that sigh and break in two under your eyes. A couple of mountain peaks that rear their hoods and lower upon your head, or lightning ring from shrines and that sing in every tree. Do they plunge you into anxieties and the dilemmas of reason? No, this want to do. You are a simple man, and that's your strength. Horse sense and the blinkers are your fault. So in this stanza, poet is telling that man should not be afraid of the mist, fog, shrines. He is not to be disheartened by all the barrier. After all, he has horse senses. He is a simple man. He has to bring about all this destruction in his spite of impending mission. सो इस स्टैंजा में पोइट जो है बता रहे हैं कि मैन को जो है ये सारा फॉरेस्ट इसको काट देना चाहिए अपने जो काम है, अपने स्टम्प्स बनाने के लिए, अपनी बटिंग बनाने के लिए, क्योंकि उसके पास एक्स है, सिक्कल है, नाइफ है, सो है, सब कुछ है। तो उसे पूरे वर्ल्ड को हार्वेस्ट कर देना चाहिए अपने जो फ्लरिश्ड हैंड से इनसे, और उसे जो है नहीं डरना चाहिए उस विंटर के मिस्ट से, उस वॉल के फॉग से। और वो जो एक लाइन बनी हुई है स्पेस बिटवीन फेस एंड द रोड दैट साइड एंड ब्रेक इनटू अंडर योर आइज़, ए कपल ऑफ माउंटेन पीक्स, जो कि वो उनके रास्ते में जो भी आते हैं उनसे उनको डरना नहीं चाहिए, और लाइटनिंग विंग्स, किसी से नहीं डरना चाहिए, और ये जो एंग्जाइटीज़ और डायलेमा ऑफ रीज़न है इससे भी नहीं। और तुम, वो पोइट जो कहते हैं, तुम एक सिंपल मैन हो और ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है इससे, और तुम्हारे पास जो सेंसेस हैं वो जो है, यू आर ए सिंपल मैन, हैज़ हॉर्स सेंसेस, ही हैज़ टू ब्रिंग ऑल द डिस्ट्रक्शन इन स्पाइट ऑफ इम्पेंडिशन। और तुम्हें जो है अपना पूरा डिस्ट्रक्शन जो है लेके ही आना है। क्योंकि पोइट यहाँ पे सारा सटायर कर रहे हैं मैन पे, कि मैन जो अपने काम करता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वो नहीं सोचता है। तो सटायर के रूप में ये पूरी पोएम चलती है। स्टार्टिंग में हमने देखा कैसे वो बोलते हैं कि नहीं 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 तुम बैठे क्यों, कुछ करो। फिर बाद में वो आते हैं कि मैन जो है अपने नेचर से जो है बहुत वायलेंट और लाइफ थ्रेटनिंग है। वो हर चीज़ को अपने में डोमिनेट करना चाहता है, चाहे वाटर हो चाहे स्काई हो। वो जैसे हमें एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है उसकी कहानी बताते हैं। फिर पोइट कहते हैं कि मैन को पूरा जो है इसको
पूरा काट देना चाहिए फॉरेस्ट को, क्योंकि उसके पास एक्स है, सिकल है, नाइफ है, सॉ है, और उसे जो है विंटर से या लाइटनिंग से या किसी से भी नहीं डरना चाहिए। उसे जो है सारा डिस्ट्रक्शन एक साथ ही ला देना चाहिए। Eat what comes to hand, crush what you touch, cut the hindering vines. Mother Earth herself, through tired, lies open to the skies. There still flesh on her bone marrow. For your hunger, come, come, brother. Never forget that you are a man. Now the poet is saying that कि eat whatever comes to hand. खाओ जो भी तुम्हारे हाथ में है, क्रश करो जिसको तुम टच कर रहे हो, कट मदर अर्थ में जो है, जो हम देखते हैं कि आजकल कैसे मदर अर्थ को कैसे वो खोद के पूरा उसको बेचारे को जो है ज़ख्मी कर दिया है। तो पोइट कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी और खोदे, क्योंकि उसकी बॉन में अभी भी बहुत मैरो बचा हुआ है। तो तुम उस बॉन में, जब तक उसकी बॉन पे जो है फ्लैश है तब तक तुम उसे जो है खोदते जाओ। Lies open to the skies, one arrow for your hunger. Come, come, brother, never forget that you are a man. और देखिए आओ, तुम मत बोलो कि तुम मैन हो। तो तुम पोइट यहाँ पे फिर सटायर कर रहे हैं कि कैसे हम मदर अर्थ को जो है नुकसान पहुँचा रहे हैं और साथ में खुद को भी। Then there's the well of life, rope the wheel and axle, pull out all the water, reach the last dryness of the rock, grope with the grappling iron, V for victory, brother, break down the atom, reach for the ultimate world within. Now the poet is saying that there is a well of life. वही कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है कि लाइफ की एक जो है वेल बनी हुई है, उसके ऊपर तुम जो है वो एक रोप से जो है उस पूरी वेल को जो है तुम खाली कर दो, पुल आउट ऑल द पूरा वाटर ले जाओ उसको, जब तक उसकी एक एक रोक जो है ड्राई नहीं हो जाए तब तक तुम उसका पूरा पानी निकालते रहो, लाइक दिस। और पोई यहाँ कहते हैं कि मैन के लिए जो है वी जो है एक विक्ट्री का साइन है, और वो जो है वो कहते हैं कि जो मैन है वो एक एटम को भी ब्रेक कर सकता है अल्टीमेट वर्ल्ड तक पहुंचने के लिए। हर एक चीज़ को वो ब्रेक कर सकता है, हर एक चीज़ को वो नष्ट कर सकता है। Find God's own arrow and aim it straight at the heart of God's own embryo world. Do something, anything, brother. Idle man are burden on the land. Do, brother, do something. Keep doing something all the time through lightning, Mother Earth's loads. This is right. This is natural. This is the one thing needful. Now the poet is saying, find God's own arrow and aim it straight at the heart of God own. पोइट कह रहे हैं कि तुम जो है गॉड का खुद का जो एक एरो, जो एक साइन देते हैं, वो जो जाके जो है गॉड की जो खुद की बनाई हुई जो वर्ल्ड है, गॉड्स ओन एम्ब्रॉयड वर्ल्ड जो है, उसको जो है उसके जो वजन है उसको तुम जो है लाइट कर रहे हो। डू समथिंग ब्रदर, कुछ करो, करते रहो, कुछ भी करो ब्रदर। बिल्कुल भी आइडल एकदम फ्री मन के मत बैठो, क्योंकि वो जो आइडल मैन है जो है कि वो लैंड के ऊपर जो है एक बर्डन है, तो तुम वैसे मत बनो। डू समथिंग, करते रहो कुछ भी। कीप डूइंग समथिंग ऑल द टाइम, करते रहो कुछ भी हर समय, इस मदर अर्थ के जो बर्डन को है लाइट करने के लिए। वो कहते हैं दिस इज़ राइट, दिस इज़ नेचुरल एंड दिस इज़ द वन थिंग नीडफुल। सो पोइट ने यहाँ एंड में भी एक सटायर किया है कि तुम करते रहो, क्योंकि ये सही है, यही काम, यही चाहिए, यही जो है नीडफुल है। तो पूरी पोएम एक सटायर है मैन के ऊपर कि मैन जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग वायलेंट नेचर का है, जो कि नेचर को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। सारा डिज़ास्टर जो है वो बहुत फास्ट स्पीड में लेके आ रहा है। जैसे J.B. प्रिस्टली ने एक लाइन कही थी, ऑल द इविल्स इन दिस वर्ल्ड इज़ ब्रॉट अबाउट बाय मैन हु आर ऑलवेज अप एंड डूइंग एंड कैन डू नथिंग। ये कैन डू नथिंग का एक ऐसे है, J.B. प्रिस्टली ने लिखा था ऑन डूइंग नथिंग। J.B. प्रिस्टली ने उसके अंदर एक लाइन थी कि सारी जो इविल्स है वो सारी मैन ही लेके आए, क्योंकि वो हमेशा अप एंड डूइंग सिचुएशन में रहता है, वो हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहा होता है, और इस वजह से जो है सारी जो है डिज़ास्टर जो है इविल है जो वर्ल्ड में वो लेके आए। जैसे एक लाइन है, डेविल स्टिल द बिजिएस्ट क्रीचर, कि डेविल हमेशा से एक बिजिएस्ट क्रीचर
है, बहुत व्यस्त जो है क्रिएचर है। सो ये थी पूरी पोएम। इस पोएम में पोइट ने जो ये बताया कि अगर उस समय जब 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, अगर उस समय पॉलिटिशियंस ने जो है अगर पॉलिटिशियंस ने अपने जो नोशंस और जो लेजीनेस ऑफ क्राइम है उसके ऊपर ध्यान दिया होता तो वो 2 वर्ल्ड वॉर भी नहीं होते। मैन ब्रिंग डिस्ट्रक्शन टू मदर अर्थ बाय डिस्ट्रॉइंग, कटिंग, बर्निंग, etc. He exploit natural resources to the maximum. The mother is exhausted, but man is asked to get the flesh from her bone and the marrow inside the bone. Everything has been created by God in this world to be useful to man, but the poet satirically describes how a man becomes a devil and an instrument to complete devotion by doing something all the time. सो ये पूरी पोएम सटायर है कि गॉड ने जो है सब कुछ बनाया है, पर मैन जो है उसको जो है हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने से जो है इसको जो है नष्ट कर रहा है। पूरा डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत फास्ट स्पीड में लेके आ रहा है। और दिस इज़ अ वॉल पोएम जिसके अंदर पोइट ने बहुत कुछ हमें जो सटायर के रूप में बताया है कि मैन को जो है कैसे इस अर्थ को डिस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए। पूरे सटायर के रूप में बताया कि मैन क्या क्या करता है, कि ऐसे ऐसे हर समय कुछ ना कुछ करता रहता है, इसलिए जो है ये बहुत फास्ट स्पीड में जो है डिस्ट्रक्शन आ रहा है। एक लाइन है, ऑल द इविल इन दिस वर्ल्ड इज़ ब्रॉट अप बाय मैन एंड बिकॉज ही वॉज ऑलवेज अप एंड डूइंग समथिंग। सो दिस वॉज द होल पोएम. इट वॉज रिटन इन appealing manner. Poet is appealing to the man. So here we end this video. I hope you like this and understand it. If you like it, then please subscribe the channel. Thank you for watching the video.